بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس کا بھی کوئی بیٹا یا رشتہ دار ٹرانسفارمر مشین سے گزرا ہوگا۔ ایسے 16 نام اور پتے ہمیں معلوم ہیں۔ ہم ان 16 میں سے کسی نہ کسی کے ذریعے اس انجینئر تک پہنچ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، تم ویلی کے باپ کو کچھ اور ٹٹول کر دیکھو۔ میں جا رہی ہوں، فرہاد کے متعلق بتاؤ۔ وہ جنا کو لے کر پیرس سے نکل گیا ہے، بعد میں مجھ سے رابطہ کرے گا۔ لیلا چلی گئی۔ سونیا خلا میں تکنے لگی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ سوچنے کا انداز بتا رہا تھا کہ دشمنوں کی شامت آنے والی ہے۔ علی تیمور ویلی کے ساتھ ڈائننگ ہال میں جانا چاہتا تھا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر بولی، اتنی جلدی کھاؤ گے؟ ابھی تو 8 بجے ہیں۔ میں دیر سے کھاؤں گا، لیکن ہم ہال میں بیٹھ کر باتیں تو کر سکتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم ہال میں بیٹھ کر باتیں کرو گے؟ تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنا نہیں آتا؟ وہ بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی۔ میں بھی پہلی بار تم سے دوستی کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں تمہارے اندر کیا کشش ہے۔ میں تمہارے بازوؤں میں سمٹ کر ڈانس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ عشق کے ایسے ہی مرحلے سے کترا رہا تھا، لیکن وہ اسے پکڑ کر ڈانس فلور پر لے آئی اور رقص کرنے لگی۔ تم اچھی ہو، رقص اچھا نہیں ہے۔ مجھے تھرکنا اور مٹکنا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ مجھے سنجیدگی پسند ہے اور یہ سب غیر سنجیدہ حرکات ہیں۔ تم عجیب ہو، آج کا ہر نوجوان ڈسکو کا دیوانہ ہے۔ تو پھر میں نوجوان نہیں ہوں، ذرا غور سے دیکھو، شاید میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے ڈانس فلور سے باہر آ گئی۔ کلب کی بالکنی سے سمندر نظر آ رہا تھا۔ کئی ہیڈ لائٹس کے ذریعے دور تک ساحل اور سمندر کو روشن رکھا گیا تھا۔ وہ بالکنی میں آئی، اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، مجھے تمہاری سنجیدگی اچھی لگ رہی ہے، لیکن سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری قربت کو محسوس نہ کرو۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہو کر بولا، اوہ میں کیا کروں؟ پارس ہوتا تو اب تک تمہاری قربت کی ایسی کی تیسی کر چکا ہوتا۔ یہ ماما نے مجھے کہاں لا کر پھنسا دیا ہے۔ وہ حیرانی سے بولی، تم گہری گہری سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ کیا میرے گلے لگنے سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ممی کہتی ہیں شادی سے پہلے اپنی عزت کے شیشے کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے بولی، کیا تمہاری ماں نے یہ نصیحت تمہاری عزت کو سنبھال کر رکھنے کے لیے کی ہے؟ ہاں، کیوں مرد کی عزت و آبرو نہیں ہوتی کیا؟ وہ پھر ہنستے ہوئے بولی، میں پہلی بار سن رہی ہوں کہ سنبھال کر نہ رکھی جائے تو مرد کی آبرو بھی لٹ جاتی ہے۔ اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وہ پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے بولی، تم کمال کی چیز ہو۔ پورے امریکہ میں اپنی آبرو بچانے والا ایسا جوان نہیں ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری ماں نے تمہیں بیٹی بنا کر پالا ہے۔ علی نے اس کے دونوں بازوؤں کو گرفت میں لیا تو ہنسی تھم گئی۔ ایسی مردانہ گرفت تھی کہ دل لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، کیوں مذاق اڑا رہی ہو؟ کیا تم ایسا بوائے فرینڈ چاہتی ہو جو تمہیں اٹھا کر لے جائے اور تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا کر تمہیں بے حیا بنا دے؟ ایسے تو تمہیں قدم قدم پر ملیں گے۔ تمہیں دوست کی نہیں، عزت کے دشمن کی ضرورت ہے۔ جاؤ۔ اس نے بازوؤں کو چھوڑ دیا اور منہ دوسری طرف پھیر کر سمندر کو دیکھنے لگا۔ ویلی چند لمحوں تک گم سم رہی۔ بڑے باپ کی بیٹی تھی، کسی کی بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ علی نے تو بڑی سخت باتیں سنا ڈالی تھیں۔ اسے غصہ آنا چاہیے تھا، مگر نہیں آ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا وہ پھر ایک بار اس کے بازوؤں کو مردانہ گرفت میں لے کر جھنجھوڑ ڈالے۔ جو بات عورت کو اچھی لگتی ہے وہ اسے بھی شکایت کے طور پر کہتی ہے۔ اس نے کہا، تم درندے ہو، میرے دونوں بازو دکھ رہے ہیں۔ وہ کچھ نہ بولا۔ ویلی نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، پھر سر رکھا، اس کے بعد کہا، غصہ مجھے دکھانا چاہیے، الٹا تم دکھا رہے ہو۔ چلو میں ہی سوری کہہ دیتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، ہم جوانوں کو مستقبل میں ذمہ دار انسان بن کر دکھانا ہے۔ اگر ہمارا آج عیاشیوں میں ڈوب جائے گا تو ہمارا کل بڑا عبرتناک ہوگا۔ ہمارے بچے وہی کریں گے جو ہماری عیاشی اور غیر ذمہ داری انہیں سکھائے گی۔ وہ سامنے آ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، تم بہت اچھے ہو، ایک مکمل انسان ہو۔ ملاقات تو یہ پہلی ہے، مگر تم میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے ہو۔ سوچتی ہوں تم سے جدا ہو کر کیسے رہوں گی۔ مجھ سے وعدہ کرو، روز صبح و شام ملتے رہو گے۔ اگر تم اپنے جذبات پر قابو پاؤ گی اور اپنی شرم و حیا کو قائم رکھو گی تو میں ضرور ملتا رہوں گا۔ ہم ایک دوسرے کا صرف ہاتھ پکڑیں گے۔ میں تمہیں دیکھ کر شادی کی مسرتوں کا انتظار کرتی رہوں گی۔ تم بہت اچھی ہو، کشتی میں سیر کرو گی؟ ہاں، تمہارے ساتھ بڑا مزہ آئے گا۔
वो एक दूसरे का हाथ थाम कर चलने लगे। सोनिया का ये मंसूबा था कि वैली डिनर के बाद क्लब के बाहर कश्तियों की तरफ आएगी तो उसे अगवा कर लिया जाएगा, फिर उसके ज़रिए उसके टेलीपैथी जानने वाले भाई पॉल हॉपकिन को ट्रैप किया जाएगा। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए काफ़ी वक्त था। अली उसे अगवा करने की गर्ज से कश्ती की सैर कराने नहीं जा रहा था। मंसूबे का एक अहम पहलू ये भी था कि अगवा के मामले में अली शरीक नहीं रहेगा। उस पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं आएगा। वो सिर्फ चंद घंटों तक वैली को अपने साथ मसरूफ़ रखेगा और अभी वो यही कर रहा था। क्लब के दूसरे हिस्से से वैली के माँ बाप आ रहे थे। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ जा रही हो बेटी? साहिल की तरफ जा रही हूँ। फिर वो माँ के पास आई, उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिमी हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा शरीफ इंसान है। फिर वो झुककर माँ के कान में बोली, बाय गॉड मम्मी, उसने अभी तक कोई काबिल एतराज़ बात नहीं की है। कहता है शादी तक हमें शर्मो हया का पास रखना चाहिए। मम्मी ने हैरानी से अली की तरफ देखकर कहा, यह हैरानी की बात है। आज के दौर में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। हालांकि छोटी मोटी शोखियाँ कर लेना तो हमारी सोसाइटी में मोहब्बत करने का इजहार है। अली ने झींप कर नज़रें झुका लीं। बाप ने कहा, मुझे तुम दोनों की दोस्ती मंजूर है। अगर तुम शादी का इकरार करो तो मैं तुम्हारे बाप से बात करता हूँ। वो बोला, पहली मुलाकात में बहुत कुछ समझने के लिए रह जाता है। अगर आगे चलकर मैंने वैली को फरेब दिया तो उसका नाजुक दिल टूट जाएगा। मैं समझता हूँ किसी बड़े फैसले से पहले हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। बाप ने कहा, तुम बहुत समझदार हो। मुझे अपनी बेटी पर फख्र है कि उसने तुम्हें पसंद किया है। मम्मी ने कहा, कम ऑन जिमी, मेरी बेटी से इजहार मोहब्बत में शर्मा क्यों रहे हो? वो घबरा गया। उसने बड़ी मुश्किल से लड़की को फासला रखने का दर्स दिया था। अब लड़की के माँ बाप उसे मजबूर कर रहे थे। बाप ने हंसते हुए कहा, अरे मैंने पहली बार ऐसा शर्मीला बॉयफ्रेंड देखा है। ओह कम ऑन जिमी, मैंने तो पहली ही मुलाकात में वैली की माँ को अपने करीब कर लिया था। वो अंदर से कराहते हुए बोला, या अल्लाह, ये सोनिया मामा ने कहाँ फंसा दिया है। या खुदा, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। वैली का हुस्न और कोरा शबाब मुसीबत नहीं था। जिसे मिलता वो शुक्र अदा करता, लेकिन अली नाशुक्रा था। अपने मिजाज और अपनी तहजीब से मजबूर था। उस लम्हे यही समझ में आया कि वैली को करीब करने से पहले ही चकरा कर गिर पड़े। मामा का मंसूबा खाक में मिलता रहे तो मिलता रहे। वो साफ तौर से कह देगा कि आइंदा ऐसा रोल अदा नहीं करेगा। वो वैली की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले कि चकरा कर गिरता अचानक आवाज़ आई, खबरदार, कोई हरकत ना करे और कोई शोर ना मचाए। 4 आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके चेहरों पर मास्क चढ़े हुए थे और हाथों में रिवॉल्वर थे। एक ने वैली को अपनी तरफ खींचकर उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर की नाल रखी और कहा, इसकी ज़िंदगी चाहते हो तो हमारे रास्ते में मत आना। वो वैली को खींच कर ले जाने लगे। वो जाते जाते अली को मदद के लिए पुकार रही थी। माँ रो रही थी। बाप बेबसी से पेचोताब खा रहा था। अली नागवारी से सोच रहा था, मामा का मंसूबा मेरी तौहीन का सबब बन गया है। इन लोगों को मेरी मौजूदगी में अगवा नहीं करना चाहिए था। ये कैसी बेबसी है कि मैं वैली को बचा सकता हूँ मगर बचा नहीं सकता। उस लड़की को शर्म और शराफत का दर्स दे रहा था और अब उसी से दुश्मनी कर रहा हूँ। उसे उठाकर ले जाने वाले ना जाने उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। वैली का बाप दौड़ता हुआ फ़ोन करने गया था। अली भी सोनिया से फ़ोन पर शिकायत करना चाहता था। उसी वक्त लैला ने आकर कहा, अली दौड़ो, हम धोखा खा रहे हैं। वैली को ले जाने वाले हमारे आदमी नहीं हैं। वो एकदम से उछल पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ क्लब के बाहर आया। वो लोग वैली को एक बड़ी मोटर बोट में डालकर उसे स्टार्ट कर रहे थे। अली ने अंदाज़ा लगा लिया कि इतना फासला तय करने तक उनकी मोटर बोट स्टार्ट होकर आगे बढ़ जाएगी। उसने दूर ही से अपनी मोटर बोट में छलांग लगाई, लंगर खोला और उसे स्टार्ट किया। वो जा रहे थे। ये भी उनके पीछे रफ्तार बढ़ाने लगा। आगे पीछे तेज़ रफ्तारी का मुजाहिरा होने लगा। आगे वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। अली ने कोट के अंदर से रिवॉल्वर निकाला लेकिन जवाबी फायरिंग नहीं की। उन्हें यह समझाना चाहता था कि वो निहत्था है। मुसलसल फायरिंग के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वैली का आशिक जोश में आकर खाली हाथ ताकुब कर रहा है। उन्होंने रफ्तार ज़रा सुस्त कर दी ताकि वो करीब आए तो उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाए। लेकिन फासला कम हुआ तो उनकी तवक्को के खिलाफ अली ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब आने का मकसद ये था कि निशाना दुरुस्त लगे और कोई वैली को नुकसान ना पहुंचाए। जब इतनी एहतियात के साथ हमला हो तो भला नाकामी कैसे हो सकती है। अगवा करने वाले 2 दुश्मन उलटकर पानी में चले गए। बाकी 2 रह गए।
तीसरा ड्राइवर था, उसने जान बचाने के लिए रफ्तार तेज कर दी। दोनों मोटर बोट्स फिर तेजी से आगे पीछे दौड़ने लगी थीं। ऐसे वक्त लैला ने आकर कहा, मैं तुम्हारी तवज्जो दुश्मनों से हटाना नहीं चाहती, सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अगवा करने वाले योगा के माहिर हैं। मुझे उनके दिमागों में जगह नहीं मिल रही है। मैंने वैली के दिमाग में रहकर सुना है, उनमें से एक कह रहा था कि हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आया, गोया वो वैली को हेलीकॉप्टर में पहुंचाने वाले हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके दुश्मनों को इसी समुद्र में नाबूद कर दो। फिर वो चौंक कर बोली, ओ गॉड, मैं तुम्हारे जरिए हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रही हूँ। अली कुछ करो, मैं वैली के पास रहूँगी। वो चली गई। अली पूरी रफ्तार से ड्राइव कर रहा था, इससे ज़्यादा रफ्तार मुमकिन नहीं थी। दुश्मनों का ड्राइवर भी माहिर था, फासला कम होने नहीं दे रहा था। हेलीकॉप्टर की आवाज़ करीब आती जा रही थी। अली ने सर उठाकर देखा, वो हेलीकॉप्टर सर पर पहुंच रहा था और अगली मोटर बोट तक पहुंचने के लिए परवाज़ नीची कर रहा था। उस हेलीकॉप्टर के साए में रहने के लिए अगली मोटर बोट की रफ्तार कम हुई तो अली ने एक गोली ठोक दी। तीसरा दुश्मन भी समंदर को प्यारा हो गया। हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी लटकती आ रही थी। तीसरे दुश्मन के बाद चौथे ने मुसलसल फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन अली ऐसा अनाड़ी नहीं था कि जवाबी फायरिंग करता। उसने गोलियों से बचते हुए सीढ़ियों पर फायर किया। एक तरफ की रस्सी टूट गई, दूसरे फायर में सीढ़ी टूटकर पानी में चली गई। इसे हाजिर दिमागी कहते हैं। उसने हेलीकॉप्टर के जरिए अगवा करने का रास्ता ही ख़त्म कर दिया था। अब झुंझलाहट का मुजाहिरा हो रहा था। हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हो गई थी। वो मोटर बोट की समतें बदल बदल कर बचने लगा। उधर लैला ने वैली के जरिए देखा, तीसरा दुश्मन जो गोली खाकर समंदर में गिर गया था, उसकी गन मोटर बोट की सीट के पास पड़ी हुई थी। वैली ने लैला के जेरे असर रहकर अचानक गन को उठाया और चौथे दुश्मन पर गोली चला दी। वो लुढ़खड़ा कर गिरा। उसने गुर्रा कर वैली को देखा। अब मरते मरते उसे मार डालना चाहता था, लेकिन राइफल वाले बाजू ही में गोली लगी थी। उसने कोशिश करके दूसरे हाथ से राइफल को संभाला, मगर वैली के हाथ से चलने वाली गोली ने उसे मौका ना दिया। ड्राइवर ने परेशान होकर पूछा, ए जॉन, क्या तुम्हें भी गोली लगी है? जवाब दो, खामोश क्यों हो? उसने ड्राइव करते हुए सर घुमाकर पीछे देखा। वैली ने उसके मुंह पर गोली मार दी। वो बैठे बैठे उछलकर एक तरफ ऊंधा हो गया, आधा बाहर आधा बोट के अंदर रह गया। वैली ने उसकी टांगें पकड़कर उसे उल्टाया और हमेशा के लिए बाहर कर दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोट को काबू में कर लिया। नाकाम होने के बाद हेलीकॉप्टर वाले उस पर भी फायरिंग कर रहे थे। लैला बोट का रुख बदल बदल कर उसे बचा रही थी। थोड़ी देर में अली भी फायरिंग से बचता हुआ करीब आ गया। दोनों बोट्स एक साथ चलने लगीं। रफ्तार कम हो गई। वो हाथ बढ़ाकर बोला, मेरे पास आओ। वो हाथ थाम कर चली आई। फायरिंग रुक गई थी। अली ने सर उठाकर देखा, हेलीकॉप्टर दूर जा रहा था। पता नहीं क्या बात हो गई, शायद फायरिंग के लिए कारतूस ख़त्म हो गए या ईंधन ख़त्म हो गया या फिर कोई और मजबूरी होगी। हेलीकॉप्टर वालों ने उनका पीछा छोड़ दिया था। वैली ने उसकी गर्दन में बाहें डालकर खुशी से कहा, तुम ज़बरदस्त हो, तुमने तन्हा इतने दुश्मनों को मार डाला है, इन्हें भगा दिया है। आई लव यू, आई लव यू। वो उसे दीवानावार चूमने लगी। वो घबरा कर बोला, बेहतर होगा तुम पहली मोटर बोट में वापस चली जाओ। क्या मैं अच्छी नहीं लगती? मेरा प्यार अच्छा नहीं लगता? दुश्मन अचानक वापस आएंगे और तुम्हारे प्यार को गोली मार देंगे। ज़रा होश में रहो, पहले जान बचाने की फ़िक्र करो। वो फिर भी अलग ना हुई। उसे लग कर बैठते हुए बोली, क्या वो वापस आएंगे? नहीं, तुम मुझे डरा रहे हो। प्लीज़ डैशबोर्ड में देखो, कुतुबनुमा होगा। हम खुले समंदर में हैं, कंपस के बगैर समत मालूम नहीं कर सकेंगे। वो डैशबोर्ड खोलकर कंपस तलाश करने लगी। लैला ने कहा, वैली को वापस ना ले जाना, उसके अगवा का इल्ज़ाम दुश्मनों पर लगने दो। आंटी, मैं समझ रहा था कि आप यही कहेंगी। मैंने कंपस को पहले ही सीट के नीचे छुपा दिया है। मैं भूल गई थी कि तुम अपने बाप की तरह चालाक हो। मैं सोनिया के पास जा रही हूँ। उसने सोनिया के पास आकर अगवा की तमाम रूदाद सुनाई। फिर कहा, हमारी प्लानिंग के मुताबिक वैली हमारे कब्ज़े में है। क्या मैं उसके बाप को ट्रैप करूँ? सोनिया ने कहा, वैली के बाप को ख्याल ख्वानी के ज़रिए कभी मुखातिब ना करना। अब मुझे बताओ, मैं मना क्यों कर रही हूँ? लैला थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, पहले तुमने ही कहा था कि मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए वैली के बाप और टेलीपैथी जानने वाले भाई को ट्रैप करूँगी। क्या अब इसलिए मना कर रही हो कि उसे दुश्मनों ने अगवा किया है? वो बोलते बोलते रुकी, फिर चौंक कर बोली, हाँ समझ गई। वैली को जिन लोगों ने अगवा किया है उनका कोई बड़ा मकसद होगा, और बड़ा मकसद यही है कि इसका भाई टेलीपैथी जानता है।
یہ اغوا کرنے والے کسی خطرناک تنظیم سے یا ماسک مین سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاباش، صحیح سمت میں سوچ رہی ہو، آگے بولو۔ اگر ویلی کو ماسک مین کے آدمی لے جا رہے تھے تو ماسک مین کے ٹیلی پیتھی جاننے والے پاسکل بوبا اور جو بھی سرگرم عمل ہوں گے وہ ویلی کے باپ کے دماغ میں آتے ہوں گے۔ اگر میں ویلی کے باپ کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کروں گی تو یہ راز فاش ہو جائے گا کہ ویلی کو بچانے والے فرحاد کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح تمہارے اور علی کے بے نقاب ہونے کا اندیشہ ہے۔ بالکل ٹھیک، تم تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد ہر پہلو پر نظر رکھنے لگو گی۔ شکریہ سسٹر۔ تم ویلی کے باپ کے پاس رہو، میں اسے فون پر مخاطب کروں گی۔ وہ چلی گئی۔ سونیا اپنے بنگلے سے باہر آئی، کار میں بیٹھ کر ساحلی راستے پر تھوڑی دور تک گئی، پھر کار روک کر ایک ٹیلی فون بوتھ میں آئی۔ وہاں سے اس نے میری کلب کے مینیجر کو فون کیا، پھر اس سے کہا تمہارے کلب میں مسٹر ہاپکن موجود ہیں، پلیز انہیں فون پر بلائیں۔ وہ کسی بھی معاملے میں ایک پہلو پر توجہ دیتی تھی۔ یہی فون وہ اپنے بنگلے سے کر سکتی تھی، لیکن ویلی کا باپ ملٹری انٹیلیجنس کا چیف تھا، ٹرانسفارمر مشین کا گارڈ بھی تھا، اس کے فون کال ٹیپ کیے جاتے ہوں گے۔ ایسی صورت میں فوجی سراغ رسانوں کو معلوم ہو جاتا کہ سائمن کی وائف نے مسٹر ہاپکن کو فون کیا ہے۔ فون پر ہاپکن کی آواز سنائی دی۔ سونیا نے کہا مسٹر ہاپکن، تمہاری بیٹی ہمارے پاس ہے، ابھی وہ خیریت سے ہے۔ اگر تم نے پولیس یا فوج کو اس کے اغوا کی رپورٹ دی تو وہ خیریت سے نہیں رہے گی۔ تم کون ہو؟ ابھی دوست ہوں، میرے مشورے پر عمل نہیں کرو گے تو دشمن بن جاؤں گی۔ میں عمل کر رہا ہوں۔ جس وقت تمہارے آدمی ویلی کو لے جا رہے تھے میں فوجی امداد حاصل کرنے کے لیے ٹیلی فون کرنے جا رہا تھا، تب ایک عورت نے میرے دماغ میں آ کر وارننگ دی کہ میں موٹر بوٹ یا ہیلی کاپٹر میں تعاقب نہ کروں، پولیس اور فوج سے مدد حاصل نہ کروں، ورنہ ویلی کو گولی مار دی جائے گی۔ یہ حیرانی کی بات تھی کہ کس عورت نے ہاپکن کے دماغ میں آ کر دھمکی دی تھی، جبکہ لیلا اور سلطانہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اسی وقت لیلا سونیا کے پاس یہی کہنے آئی تھی کہ خیال خوانی کرنے والی کوئی عورت ویلی کے ذریعے اس کے باپ کو کمزور بنا رہی ہے۔ سونیا نے فون پر کہا مسٹر ہاپکن، جو عورت تمہارے دماغ میں آتی ہے اس سے نجات حاصل کرو، شراب چھوڑ دو، صبح اٹھ کر یوگا کی پریکٹس کرو۔ جب وہ عورت دماغ میں آنے کے قابل نہیں رہے گی تو پھر میں تم سے فون پر بات کروں گی۔ میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ میری پناہ میں محفوظ ہے۔ اس ٹیلی پیتھی جاننے والی عورت کے فریب میں نہ آؤ۔ میں نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے، وہ کبھی ویلی تک نہیں پہنچ سکے گی۔ جب تم ویلی کی حفاظت کر رہی ہو تو پھر ہماری دوست ہو، مجھ سے ملو یا مجھے اپنے پاس بلاؤ تاکہ وہ خیال خوانی کرنے والی تمہارے دماغ میں بیٹھ کر میرے پاس پہنچ جائے۔ مسٹر ہاپکن، ذرا غور کرو، شراب نوشی نے ابھی تمہاری بیٹی کو تم سے جدا کر دیا ہے۔ اوکے، کل رابطہ کروں گی، گڈ لک۔ اس نے ریسیور رکھ کر لیلا سے پوچھا کیا تم نے ہاپکن کے دماغ میں ٹیلی پیتھی جاننے والی کی آواز سنی ہے؟ نہیں، وہ موجود نہیں تھی۔ میرا خیال ہے سسٹر وہ جو ہوگی۔ ہاں، ماسک مین کے پاس وہی ایک خیال خوانی کرنے والی لڑکی ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ یہاں 16 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی جو فہرست ہمارے پاس ہے اس میں بھی 3 لڑکیوں کے نام ہیں۔ لیلا نے کہا ایک جورا جوری ہے، میں اس کے دماغ کو ٹٹول چکی ہوں، وہ ہماری معمولہ ہے، کسی سازش میں شریک نہیں ہے۔ باقی 2 لڑکیوں تک ہمیں پہنچنا ہے اور جلد پہنچنا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ ماسک مین یا یہودی تنظیم کے سربراہ ٹھیک ہماری طرح یہاں کے 16 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی خیال خوانی کرنے والی لڑکی کو اپنی دوست یا معمولہ بنا چکے ہوں۔ تمہارا شبہ درست ہو سکتا ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹھیک ہماری طرح کوئی ویلی کو اغوا کرنا چاہے گا، بالکل ہماری طرح کوئی 16 ٹیلی پیتھی جاننے والوں تک پہنچ رہا ہوگا۔ سلطانہ کو بلاؤ۔ لیلا چلی گئی۔ سونیا بوتھ سے باہر آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ اسے سٹارٹ کرتے وقت سلطانہ نے کہا سسٹر، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ یہ دونوں بہنوں کا سلام بھی ہوتا تھا اور کوڈ ورڈز بھی تھے۔ سونیا نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو۔ ہماری لسٹ میں 3 لڑکیوں کے نام ہیں، جورا جوری، الپا اور شلپا۔ تم جس ٹیلی پیتھی جاننے والے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو ابھی اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ الپا اور شلپا کے متعلق معلومات حاصل کرو، تمہیں ان کے پتے اور رشتہ داروں کے نام لیلا سے معلوم ہو جائیں گے۔ لیلا نے کہا سسٹر، تم جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو، یہ اچھی طرح جانتی ہو کہ سلطانہ مجھ سے نام اور پتے نہیں پوچھے گی۔ سونیا نے ہنستے ہوئے کہا پتہ ہے، میں پردہ رکھ رہی تھی، یہ سلطانہ بڑی گہری ہے۔ سلمان واسطی عرف سپر ماسٹر ارے سے دوستی کی ہے، اسی کے ذریعے ٹیلی پیتھی جاننے والوں تک پہنچ رہی ہے۔ کیوں سلطانہ، دوستی کس مرحلے پر ہے؟ او سسٹر، مذاق نہ کرو، دوستی اور صرف دوستی ہے۔ سونیا نے کہا دیکھو سلطانہ، ہم عورتوں میں چپ چاپ تمہاری بات کھل جائے تو بہتر ہے، ورنہ میں سلمان واسطی کی زبان کھلوا سکتی ہوں۔
ज़रूर खुलवाओ, सांझ को आँच नहीं, मैं जा रही हूँ। सोनिया और लैला ने हंसते हुए कहा, भाग रही है, और वो भाग गई। अली तैमूर वैली के साथ 4 घंटे तक भटकता रहा। इससे पहले 1 घंटा दुश्मनों से निपटने में सर्फ हुआ था। कुल 5 घंटों में उन्होंने बहुत लंबा सफ़र किया था। इसके बाद वो एक वीरान साहिल पर पहुंचे थे। वैली ने परेशान होकर पूछा, ये कौन सी जगह है? अली ने दिल में कहा, जहन्नम है, औरत साथ हो तो मर्द कभी जन्नत में नहीं पहुंचता। मोटर बोट साहिल से आकर लग गई। अली ने नायलॉन की रस्सी लेकर बोट को एक बड़े पत्थर से बांधा, फिर सीटों के नीचे बने हुए खानों में से ज़रूरत का सामान निकालने लगा। रिवॉल्वर के कारतूस, टॉर्च लाइट, खाने के पैक किए हुए डब्बे और कंबल वगैरह निकल आए। वो बोली, क्या हम रात यहीं गुजारेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है, दुश्मन वापस आ गए तो उनके घर में गुजारेंगे। तुम मुझे डरा रहे हो। डरने से अकल काम नहीं करती है तो सोचो, क्या दुश्मन हमें इश्क करने के लिए समंदर में छोड़ गए हैं? मेरी पेशीन गोई याद रखो, पहले एक हेलीकॉप्टर था और अब कई होंगे, और वो हमें समंदर और साहिली इलाकों में ढूंढते फिरेंगे। वो सब तुम्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। क्या तुम मेरी खातिर खतरात को दावत देकर पछता नहीं रहे हो? दोस्त के लिए खतरों से खेलने का नाम दोस्ती है। तुम बहुत अच्छे हो, अपने ख्यालात में थोड़ी सी लचक पैदा कर लो। ये कह दो कि दोस्त के लिए जान की बाजी भी लगाई जाती है और दिल से गले भी लगाया जाता है। उसने वैली को देखा। इसमें शुबा नहीं था कि वो बेहद हसीन थी। उसके प्यार की सच्चाई भी अपनी तरफ माइल करती थी, लेकिन अली का ज़मीर कहता था, उसके टेलीपैथी जानने वाले भाई को ट्रैप करने के बाद यहाँ से जाना होगा। वैली को छोड़ना होगा। उसे दोस्त बनाया जा सकता है, शरीक हयात नहीं बनाया जा सकता। शरीक हयात के लिए उसका आइडियल कोई और ही थी, जो अभी तक उसे नज़र नहीं आई थी। वो इसीलिए वैली से सिर्फ दोस्ती रखना चाहता था और ये नहीं चाहता था कि वो बिछड़ने के बाद उसके लिए रोती रहे। उसने पूछा, तुम्हें पता है मैं सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत करूँगा। वो कौन है? वो है जो मेरी आजमाइश पर पूरी उतरे। फिर तो वो मैं हूँ, आजमा कर देख लो। अच्छा ये बताओ, मैंने मोटर बोट को यहाँ क्यों रोका है? हम साहिल के किसी दूसरे हिस्से में भी तो उतर सकते थे। उसने जवाब दिया, इधर साहिल से ज़रा दूर दरख्त नज़र आ रहे हैं। जहाँ दरख्त होते हैं वहाँ इंसानी आबादी होती है। तुम किसी आबादी में पहुँचने के लिए यहाँ आए हो। तुम्हारा जवाब गलत हो गया। जहाँ दरख्त ही दरख्त होते हैं वहाँ जंगल होता है। आबादी का इम्कान बहुत कम होता है। वो मायूस हो गई, फिर बोली, अगर मेरा जवाब दुरुस्त हुआ और कहीं करीब ही आबादी नज़र आई तो तुम जीत जाओगी। बड़े आए अपना भाव दिखाने वाले। अगर मेरा जवाब गलत है तो सही क्या है? इधर मोटर बोट क्यों लाए हो? ज़रा सर घुमा कर और सर उठा कर देखो। दाएं बाएं और ऊपर चट्टाने ही चट्टाने हैं। ये मोटर बोट यहाँ अच्छी तरह छुप गई है। हेलीकॉप्टर से प्रवास करने वाले इस बोट को नहीं देख सकेंगे, ना इधर हमारी मौजूदगी का शुबा करेंगे। ओ गॉड, तुम कितनी दूर की सोचते हो। मैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोचता हूँ। मोहब्बत में अंधा बन जाऊँ तो ये ऐसी तदबीरें दिमाग में नहीं आएंगी। मुझे ताने ना दो। तुम्हारी तरह मैंने भी साहिल पर दरख्त देखे हैं। मुझे आबादी की नहीं, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। मैंने सोचा हम किसी आबादी की तरफ दरख्तों के साए में चलेंगे तो ऊपर से हेलीकॉप्टर वाले नहीं देख सकेंगे। कमाल है, तुम वक्त से पहले इतनी सारी बातें सोच लेते हो, और मैं जो इतने करीब हूँ मेरे लिए कोई जज्बे वाली सोच पैदा नहीं होती क्या? अली ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हसीनाएं सिर्फ अपनी कदर करवाने पर तुली रहती हैं। तुम नहीं सुधरोगी, चलो। उसने ज़रूरियात का तमाम सामान एक किट में रखकर उसे पुश्त पर लाद लिया, फिर चट्टानों के साए से निकलकर टॉर्च को रोशन किया। वो साहिली हिस्सा समंदर से ऊंचाई पर था। ऊपर जाने के लिए पत्थरों पर सबल सबल कर पाँव रखना ज़रूरी था। उसने वैली से कहा, तुम मेरे आगे रहो, खुदा न खास्ता पाँव फिसलेगा तो मैं संभाल लूँगा। उसने सहारा देकर उसे एक पत्थर पर चढ़ाया, फिर खुद उस पत्थर पर आकर बोला, ऊपर चढ़ो। उसने चढ़ने की कोशिश की मगर नाकाम रही। अली ने उसे फिर सहारा देकर ऊपर वाले पत्थर पर पहुंचाया। वहां से उसके ऊपर, फिर उसके और ऊपर उसे पकड़ पकड़ कर चढ़ाता रहा। वो खुद अपनी कोशिशों से किसी एक पत्थर पर भी ना चढ़ सकी। अली ने बड़ी मुश्किलों से उसे बुलंदी पर पहुंचाया। वो ऊपर पहुंचकर हाँफने लगी। अली ने कहा, यहाँ ना बैठो, जल्दी चलो। वो हाँफते हुए बोली, ज़रा दम लो, तुम आदमी हो या जिन? मुझे उठाकर चढ़ाते रहे, किट का बोझ खुद उठाकर खुद चढ़ते रहे, मगर तुम हाँफ नहीं रहे हो। तुम यहाँ से चलते चलते भी बातें कर सकती हो। आखिर इतनी जल्दी क्या है? यहाँ से समंदर को देखो, कितना रोमांटिक लग रहा है। दूर कहीं से हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें आने लगीं।
अली ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हारे चाहने वाले आ गए, दौड़ो। वो क्या दौड़ती। अली उसे खींचते हुए दौड़ाते हुए दरख्तों की तरफ जाने लगा। दुश्मनों का खौफ ना होता तो वो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ती, फिर दुश्मन ही उसे उठाकर ले जाते, जबकि वो अली का साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें आ रही थीं और बहुत दूर आसमान पर जलती बुझती सुर्ख रोशनियों से पता चल रहा था कि इस बार 2 हेलीकॉप्टर्स हैं। एक समंदर पर परवाज कर रहा था, दूसरा साहिल पर उनकी तरफ आ रहा था। करीब आने से पहले ही वो दोनों दरख्तों के साए में पहुंच गए। गर्दिश करते हुए पंखे की तूफानी हवाओं से दरख्तों के पत्ते और शाखें हिल रही थीं। हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट उन दरख्तों पर से फिसलती हुई गुजर रही थी, मगर दोनों तक नहीं पहुंच रही थी। हेलीकॉप्टर वहां से गुजर गया। वो इत्मीनान की सांस लेकर बोली, वो नहीं देख सके, तुम बहुत ज़हीन हो, अगर दरख्तों के साए में ना लाते तो। अली ने बात काट कर कहा, प्लीज़ तारीफ़ें ना करो, एक बच्चा भी ये समझ सकता है कि दरख्त के नीचे रहने से ऊपर परवाज करने वाले नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारा दिमाग बच्चों से भी गया गुजरा है। मेरी जान, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। पता है, मेरी मम्मी और डैडी मेरी जहानत की तारीफ़ें करते हैं। ज़हीन होना और बात है, हाजिर दिमागी से काम लेना और बात है। जो लोग मसाइब या ख़तरात से घबरा जाते हैं वो ज़हीन होने के बावजूद जहानत से काम लेने के काबिल नहीं रहते। या तुम्हारे जैसी लड़कियां मुसीबत में भी मोहब्बत के ख्वाब देखती हैं, उन्हें दुश्मन नहीं सिर्फ बॉयफ्रेंड नज़र आता है तो वो हाजिर दिमागी भूल जाती हैं। इधर फ्रेंड के साथ जज्बात में बहती हैं तो उधर दुश्मन गोली मार कर चला जाता है। ज़रा अपने आप पर गौर करो तो मेरी बात समझ में आएगी। तुम मोहब्बत से समझाओगे तो सब समझ लूँगी। फिर वही मोहब्बत, चलो आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ी और हंसते हुए बोली, आज के दौर में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हें कई 100 साल पहले पैदा होना चाहिए था। सुना है पिछले ज़माने में लड़के बहुत सीधे और शरीफ होते थे, मोहब्बत को गुनाह समझते थे। अली ने जवाब नहीं दिया, तेज़ी से चलता रहा। उसके लांबे पाँव तेज़ी से चलते वक्त दौड़ते हुए लगते थे। वो दौड़ते हुए बोली, तुम क्या हो, तुम्हारी हर बात दूसरों से अलग है, चलते हो तो मुझे साथ दौड़ना पड़ता है। फिर हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने एक दरख्त की आड़ से देखा, 2 सुर्ख रोशनियाँ जलती बुझती चली आ रही थीं। वो दोनों दौड़ते हुए एक घने दरख्त के साए में चले गए। शाम ही से बादल छाए हुए थे, अब रह रह कर बिजलियां चमक रही थीं। उन्होंने बिजलियों की चमक में देखा, हेलीकॉप्टरों की परवाज़ बहुत नीची हो गई थी। सीढ़ियां लटक रही थीं और मुसल्लह अफराद सीढ़ियों के आखिरी निचले हिस्से में आकर वहां से कूदते हुए ज़मीन पर आ रहे थे। इसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर परवाज़ करते हुए ज़रा दूर गए। इस बार एक हेलीकॉप्टर ने ट्रेसर गोली चलाई थी। ट्रेसर गोली जब फ़ज़ा में फटती है तो अंधेरी रात में दूर तक कई सेकंड के लिए रोशनी फैल जाती है। अली और वेली ने उस रोशनी में देखा, दूसरी तरफ भी मुसल्लह अफराद हेलीकॉप्टरों से उतर रहे थे। वो तादाद में 6 थे, इससे कबल उतरने वालों की तादाद भी यही थी। गर्दिश करते हुए पंखों के शोर में कुत्तों की आवाज़ें सुनाई दीं। वेली ने हैरानी से देखा, चंद कुत्तों को एक जाल में डालकर हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर पहुंचाया जा रहा था। अली ने एक कदम पीछे जाकर वेली को सर से पांव तक देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारे बदन का कोई कपड़ा दुश्मनों के पास रह गया था? पंखे के शोर में बात सुनाई नहीं दी। वो बोली, क्या कह रहे हो? उसने वेली के कान से मुंह लगाते हुए अपना सवाल दोहराया। वेली ने शरारत से अपना सर घुमाया, कान से लगकर बोलते हुए होंठ वेली के और करीब आ गए। जवानी की आंच आई, वो फौरन ही पीछे हट गया। वो मुस्कुराकर बोली, मेरा स्कार्फ एक शख्स के पास रह गया था। पंखे के शोर में वेली की भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अली ने इशारे से पूछा, क्या कह रही हो? वो इशारे से समझाते हुए बोली, मुझे करीब आकर कान में बोलने दो। अली ने इनकार में सर हिलाया, फिर उसका हाथ पकड़कर एक तरफ दौड़ने लगा। दोनों हेलीकॉप्टरों से दूर जा रहे थे। शोर ख़त्म हो गया था, बहुत दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। वो दौड़ते हुए बोला, तुम्हारा कोई कपड़ा उन कुत्तों को सुंघाया गया है? वहाँ मैं तुमसे कह रही थी कि मेरा स्कार्फ उनके पास रह गया है, लेकिन मैंने तो तमाम दुश्मनों को मोटर बोट ही में ख़त्म कर दिया था, फिर हेलीकॉप्टर वालों को तुम्हारा स्कार्फ कैसे मिल गया? वो बोली, मेरी क्लब के सामने उनका एक आदमी साहिल पर रह गया था, स्कार्फ उसी के हाथ में था। बड़ी मुसीबत हो गई है, हम तारीकी में इंसानों से तो छुप सकते थे, इन कुत्तों से छुप नहीं सकेंगे, ये तुम्हारी बू सूंघते हुए पहुंच जाएंगे। वो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगी। एक जगह रुककर बोली, अब मुझ में दौड़ने की हिम्मत नहीं है, वो तुम्हें कुत्तों के जरिए घेर लेंगे, तुम्हें फिर पकड़ कर ले जाएंगे। वो बदस्तूर हाँफते हुए बोली,
میں کیا کروں، میں کیسے دوڑوں؟ علی نے سر گھما کر دیکھا۔ بہت دور ٹارچ کی روشنیاں ادھر ادھر حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ کتے بھی بھونک رہے تھے اور دشمنوں کو ان کی طرف لا رہے تھے۔ علی نے کہا، اچھا تو تم کتوں کے پاس جاؤ، میں چلا۔ وہ اسے چھوڑ کر دوڑتے ہوئے جانے لگا۔ وہ چیختے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے بولی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے مصیبت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔